Welcome back to my channel, and today the topic I'm going to discuss about the array. In last video I had discussion about the array, but that was a single dimension array. So today I will be covering the complete array topic, multi-dimension array and array in this video. Okay, so let's start. I'm giving you some recap what we had discussion last video. So before we start learn, we would know that in C language capability, the enable to user design a set similar data types called array. The definition also I have written in notepad that you can see in your notes in the last video which I have mentioned. Here also the definition I have written. So an array is a variable that can store multiple value means if you want to, there is a two way. Suppose I want to store 100 people age. So what will happen? So there is a two way to do this program. So first I will create a variable and I will print that I will create 100 variable and will try to store those 100 people age in different variable. Second is I will create a loop, and in that particular loop, based on the index, I will be trying to store that all the people age. So that is the array. Suppose in this example, in the last video I had discussion. Here I have written the integer data 100. That means the data is a variable which is having the range of 100. So using this concept, it will be easy to display, easy to store the 100 people of data. Okay. So in that particular way, if you are trying to store multiple values in C language, so you have to use the array concept. So array is a two types of array: single dimensional array and two dimensional array. Two dimension array means matrix. If you want to display the value in form of matrix, so you will be using the two dimensional array, 3D dimensional array based on your requirement. Single dimensional array, that was index based. I have told you about that in last video as well. Array have 0 as a first index, not 1. This is the main point you have to be remember. If the size of an array is n, to access the last element will be n minus 1, and this is the way you can initialize the array. And so today I am going to discuss about one more program about that single dimensional array, then we will move on to the multi-dimensional array. Okay, so the program which I am going to write here, that will be calculate average. You have to calculate the average. So you have to be focus like how I will be displaying the value, because this is the most important program here that I'm going to be right now, because sometimes it used to ask in your semester exam and your university exam as well if you are a student. Okay, so the same things, the program is you have to find the average of n number using array. What are the number you want to giving from the users, so uska aapko average nikalna hai. So here I will stop for a second and I want to convey the message. If you guys are watching my videos and not able to understand any topic, you can write in a comment. I will try to explain in a better way again, and hope I will able to clear your all the doubts. And thank you so much for supporting and watching my channel. So let's move into the topic. So I'm going to write this video example here. So the file studio.h, this is the standard input header file you are going to use. This one be the Korean.h. I'm using the Turbo C++, and you know that Korean.h is used for getch in a CLRCR function. So here I will be writing the main method. This is the main method. Okay. And now here I am going to create a marks variable, and which is having the range of 10. You can give of 100, 9, whatever you want to you can do. For now I'm just taking this. So I want to initialize the value because I want to print a sum, because I need to calculate the average. So मैंने sum का जो value है वो 0 consider किया है यहाँ पे. अब डबल फ्लोट जो लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मेरा डबल का जो वैल्यू रेंज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल नाम का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने एवरेज लिया है. यहाँ पे हम प्रिंटफ लिखेंगे. प्रिंटफ में मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर एनी नंबर और एंटर नंबर्स ऑफ एलिमेंट. आप इस तरह से लिख सकते हैं. मतलब ये एक मैसेज है जो डिस्प्ले होगा आपको विंडो पे. और यहाँ पे बैकस्लैश लिख लीजिए, बिकॉज आपको एक लाइन का गैप मिलेगा तो थोड़ा अच्छा रहता है जो भी आप प्रिंट कराएंगे उसके सामने. तो ये मैसेज मेरा यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा अभी कंसोल विंडो पे. मुझे इनपुट कराना है तो स्कैनफ का यूज करेंगे, और मैंने जो इनपुट कराना है, मतलब कितने नंबर आपको इनपुट कराने हैं, उसके लिए मैंने ये %n एक वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने ये वैल्यू स्टोर कराया. मतलब सपोज मैंने कहा कि मैंने रेंज दिया 10, मैंने प्रिंट 9 नंबर एलिमेंट कराया आपको, तो जो आपका n होगा, n जो आपका 9 वैल्यू को होल्ड करेगा, मतलब नंबर 9 आपने एंटर किया 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5. तो ये यूजर से इनपुट करा के मैंने जो वैल्यू है वो n वेरिएबल में स्टोर कराई है. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है i,
ऊपर आपने देखा होगा 10 मार्क्स के बराबर में आई वेरिएबल है, मैंने इसको लूप लगाया है। ये कहाँ तक जाएगा मेरा लूप, जो आपकी इनपुट वैल्यू होगी। अगर आप इक्वल लगा देंगे, सपोज आपने यहाँ पे करा है 10 वैल्यू एंटर कर दिया, तो इक्वल मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो इक्वल नहीं लगाइए, बिकॉज n-1 होता है लास्ट में। अगर आप 1 लिखेंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लगा सकते हैं, और नहीं तो आप 0 से स्टार्ट करें, तो मैंने लेस देन लगाया है इस वजह से, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऐड, और जो आप वैल्यू वहां पे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे printf लिखा है, printf में मैंने यहाँ पे लिखा है जो नंबर आप एंटर कर रहे हैं उसको लिख लीजिए। मैंने कहा एंटर नंबर, ये मैसेज का एक तरीका है, आपको जिस तरीके से करना है, जो भी आप यहाँ पे एंटर करने जाएंगे वो वैल्यू मेरा यहाँ पे मैंने +1 इस तरीके से कर दिया। तो मैंने ये जो वैल्यू कर रहे हैं आप एंटर, यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा, इनपुट नहीं करेगा, मतलब वो लिखेगा वहां पे i+1, आपने एंटर किया 0+, तो मतलब ये आपको शो करने का एक तरीका है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो सिंपल स्कैनफ भी दे सकते हैं, ये प्रिंट कराने की बार बार जरूरत नहीं है, बट द वे इट विल बी डिस्प्ले, तो आपको वो हेल्प करेगा ये समझने में कि आपका जो वैल्यू है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरह से डिस्प्ले होके आ रहा है। मैंने स्कैनफ फंक्शन लिखा है, मतलब जैसे आपने आई की वैल्यू 0 लिखा, वो चेक करेगा कि 0 आपका, सपोज n में आपने 5 लिया, तो 0 आई की वैल्यू कितने 0 लेस देन 5, दैट इज करेक्ट, तो लूप इनसाइड आएगा कर्ली ब्रेसेस के, चेक करेगा एंटर नंबर %d 0+1, मतलब कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मार्क्स आई मतलब मार्क्स 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो भी वैल्यू है मार्क्स 1, मतलब उस इंडेक्स पे जो वैल्यू एंटर करने वाले हैं वो डिस्प्ले होगी। दिस इज जस्ट अ वे टू बी डिस्प्ले, और ये आपका क्लियर रहेगा तो आपके लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मतलब आपको क्लैरिटी रहेगी, कोई भी प्रोग्राम आपका देख के समझ सकते हैं कि आप उसमें क्या लिखने वाले हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई, मतलब 0 है सम की वैल्यू स्टार्टिंग में, प्लस मार्क्स आई पे अगर आप 1 पे आपने कोई वैल्यू एंटर किया है तो आपका आई क्या है, यहाँ पे 0 है, क्या है आपका i0 इंडेक्स पे जो आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो पहली वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और वो सम के साथ प्लस होगी। तो आपने 10 नंबर 10 एंटर किया, 0 + 10, तो सम की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये एक यहाँ पे मतलब मैंने लिखा है लॉजिक इस ये फॉर लूप के अंदर। अब मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला आप लगा देंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, मेरा जो वेरिएबल है वो एवरेज, यहाँ पे मैंने वेरिएबल मेंशन किया हुआ है, और ये आपका सम क्या है आपका इंटीजर में लिया है, आपको टाइप कास्ट कराना पड़ेगा डबल में, नहीं तो आप एवरेज को भी इंटीजर में ले लीजिए, लेकिन हम टाइप कास्ट करा लेते हैं। तो डबल और सम एक वेरिएबल है, मैंने डिवाइड बाय n कर दिया है, जो भी वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करेगा और यहाँ पे आपका एवरेज निकल जाएगा। यह इस तरीके से आप यहाँ पे लिखने वाले हैं एवरेज, ये आप प्रिंट कराने के लिए, लेकिन मैंने डबल लिया है। और देखो मैंने यहाँ पे 0.2 लिखा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, डबल है तो LF आ जाएगा, और लॉन्ग ओनली फ्लोट है तो LF आ जाएगा। सॉरी, ये चीज आपको रिमेम्बर करनी है कि आपको किस तरीके से उसका यूज करना है। इंटीजर है तो आपका ओनली %d आएगा। एवरेज एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, मैंने लिखा है 0.2, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा जो आउटपुट आएगा वो दशमलव के 2 अंक तक ही आएगा लास्ट में, इसलिए मैंने इस चीज को लिखा है। यहाँ पे आप गेट ch लिख लीजिए, थोड़ा आगे इस तरह से प्रिंट करा देते हैं आपको थोड़ा। यहाँ पे गेट ch आपका स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, CLRS आपका स्क्रीन क्लियर करने के लिए, और ये मेन मेथड का मेरा कर्ली ब्रेसेस है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम है लिखा है, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए प्रोग्राम में, तो थोड़ा यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं इस तरीके से। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कोड आप लिख रहे हैं, अगर वो आपका लुक एंड फील थोड़ा अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है कोड देखने में, और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। मतलब और कुछ भी रीजन नहीं है, आप सारे कोड को एक लाइन में लिख सकते हैं, बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप प्रोग्राम को किस तरीके से लिख रहे हैं और वो डिस्प्ले आपका प्रोग्राम किस तरीके से हो रहा है। तो अभी हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9, मैंने कोड को रन कराया। अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर कीजिए, मैंने कहा 4 नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे एंटर करने हैं, मतलब जो n है आपका, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, सो एंटर नंबर 1, मैंने एंटर किया 12, तो ये 0 की वैल्यू है, जो आपका i0 रहेगा तो 12 पे एंटर हो गया है, मैंने इस पे एंटर कर दिया 21, 3 पे एंटर कर दिया मैंने ये, 4 पे एंटर कर दिया मैंने ये, और अभी 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 लेस देन n है तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो 0 जब i की वैल्यू 0 है तो आपका वैल्यू 2 रहेगा, 1 है 21, 2 है 3 4, और जब 3 है 4 5, मतलब जब 4 लेस देन 4 हो जाएगा तो वो एग्जिट कर जाएगा। 0 to 4 काउंट नहीं करेगा, 0 to 3 काउंट करेगा, अगर आप इक्वल करते हैं तो 4 काउंट करेगा। तो अभी उसने एवरेज मुझे निकाल के दे दिया 27.50, ये आपका एवरेज यहाँ पे निकल गया है।
और ये जो एंटर नंबर परसेंटेज डी इजिकल्स टू i+1 ये लिख रहा है, ये वहां पे आपका डिस्प्ले हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल F9 मैंने किया, अब की बार मुझे 3 ही वैल्यू एंटर करनी है, तो जो पहले 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, मैंने ये 3 वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दिया है। अभी मेरा एवरेज हो गया है ये यहाँ पे एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 1 और कितना आएगा 12, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 0+1। ओके, ये जस्ट अ वे टू डिस्प्ले योर वेरिएबल। सो एंटर नंबर दिस वन, एंटर नंबर 2 1 है, मतलब इस तरीके से ये कैलकुलेट करेगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन द इनपुट यूजर। ओके, इनपुट जो आप एंटर करने वाले वो एन में मेरा स्टोर हो जाएगा। सो ये है, तो बेसिकली you can access this element based on the condition whatever you have given and based on the your limit, average limit। so you यहाँ पे आपको लिमिट सेट करनी पड़ती है सी प्रोग्राम में, जावा में ऐसा नहीं करना पड़ता है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन अ कमेंट प्लीज, सो आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट, आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर ऑल द डाउट। नेक्स्ट टॉपिक वी आर मूविंग इनटू द मल्टी डायमेंशनल एरे। सो ऑल टेक्स्ट करके बाहर आ जाइए, इसको सेव कर दिया है हमने। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी आपने जो देखा है वो सिंगल डायमेंशनल एरे है। सो बेसिकली दीज एरे जो आपने पढ़ा है वो कौन से एरे होते हैं आपके, वो 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं इनको। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल एरे। सो वो मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब आपका मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जो रहता है, जिसमें रो एंड कॉलम आप यूज करते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, वो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो अब डेफिनेशन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन एरे ऑफ एरेज, सो दैट इज कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल एरे। सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन में एक लाइन लिख देती हूँ, ये आपका है मल्टी डायमेंशनल एरे। ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। आप ऐसे लिख सकते हैं व्हेन वी क्रिएट, ऐसे लिख दो, व्हेन वी क्रिएट एन एरे ऑफ एरेज, सो दीज एरे नोन एज द मल्टी डायमेंशनल एरे। आप इस तरीके से लिख लीजिए। अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। अगर आपको समझ में आता है तो आप कुछ भी डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा एरे कहलाता है, ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। इट इज नोन एज द मल्टी डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कर रहे हैं, मैंने इंटीजर एक एरे डिफाइन किया है, मैंने यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड डिफाइन करा, तो ये मेरा रो हो गया है और ये मेरा कॉलम हो गया है। तो ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल है, मतलब ये आपका सिंटेक्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल में सिंटेक्स लिखते हैं तो आपको रो कॉलम का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एक मैट्रिक्स फॉर्मेट रहता है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे हम पेंट ओपन करते हैं, पेंट में मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है ये मल्टी डायमेंशनल एरे। मैट्रिक्स का फॉर्मेट रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, ये मेरा एक टेबल है, आप इसे कंसिडर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है और ये यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने ये बनाया है, सॉरी, स्ट्रेट लाइन। ओके, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 ऐसे करके बनाइए और ये यहाँ पे रो बना दीजिए। ये एक रो हो गई है, ये आपकी दूसरी रो हो गई है। तो इसमें कितने कॉलम है, कॉलम नंबर 1, ये क्या है आपके, ये वाली जो चीज है आपकी, ये कॉलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉलम। C0, ये क्या है, C0, इधर लिख देते हैं C1, ये आपका कॉलम है। ओके, ये आपका ये क्या है, C2, ये 2 कॉलम है। और ये क्या है आपका, ओहो व्हाट हैपेंड, ये आपका C3 है। चल नहीं रहा पेन, C3, वाइट नहीं ब्लैक ही तो लिया है कलर। काम करते हैं, ये C3 हो गया, इसको मिनिमाइज करते हैं। भाई ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ टेक्स्ट में लिख लेते हैं, टेक्स्ट की विंडो लेते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं और ये आपका C3 आ गया।
ठीक है ना। और ये आपका क्या कहलाते हैं, यहाँ पे ये लेंगे हम का, एक फिर से क्लिक करते हैं ये पे, यहाँ पे बनाते हैं इसको। ये आपका क्या कहलाता है, रो R0। और ये क्या है आपके R1, ये आपका रो है। ओके। और ये है आपका R2। मेरे पास में वो इलेक्ट्रॉनिक डेस्क बोर्ड नहीं है, तो मुझे पेंट से काम चलाना पड़ रहा है। ओके, सो ये आपकी रोज होती है, ये आपकी कॉलम होती है। फॉर्मेट कैसे आता है वो देख लीजिए। मैं टेक्स्ट विंडो लेती हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट विंडो में ही बनाती हूँ। सो ये होता कैसे, जैसे आप समझिए मैंने वहां पे ए वेरिएबल लिया, तो A 0 0, मतलब रो 0 और आपका कॉलम भी 0। ठीक है ना। और दूसरी भी बात करते हैं, अब हम यहाँ से फिर से लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम, ये हो जाएगा आपका ए। यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा रो है आपका 0, और कॉलम कौन सा है आपका C1, मतलब 1। ओके। तो अभी हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं भाई, और यहाँ पे फिर से लिखते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा आपका ए, और ये रो कौन सा है आपका 0, और कॉलम कौन सा है आपका 2। करेक्ट। तो यहाँ पे ये 2। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, मतलब आप इंटेलिजेंट हो, आई नो, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ रखा है अपने मैथमेटिक्स में। जो लोग नहीं है मैथ बैकग्राउंड से उनका अलग है, बट ये आपको 9th 10th सब जगह आपके मिलेगा, ये आपका एग्जाम्पल रहते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए ए, और ये रो कौन सा है आपका 0, तो यहाँ पे कॉलम क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से आप हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने कैसे कर रखा है, ये रो कौन सा है, अभी मैंने लिखा ए, आप बताइए रो कौन सा है 1। करेक्ट। और कॉलम कौन सा है 0। करेक्ट। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में अगर मैंने बात करा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा कौन सा ए क्या है मेरा, मतलब रो कौन सा है मेरा 1, पहले रो आता है। कॉलम कौन सा है मेरा यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा A11। राइट। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं, मेरा ए क्या है, कॉलम एक मेरा वेरिएबल नेम है, कॉलम कौन सा है मेरा, पहले रो कौन सा मेरा 1, और मेरा कॉलम कौन सा है 2। करेक्ट। तो ये मेरा यहाँ पे ऐसे आ गया, और ऐसे ही हम यहाँ पे जाते हैं। तो मेरा वेरिएबल का नाम कितना है ए मेरा, और रो कौन सा है रो R1, मतलब 1, और कॉलम क्या है मेरा यहाँ पे 3, AC3। तो ये अभी हम फिर बात करते हैं यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे आएंगे, तो ये मैंने वेरिएबल लिया है, और आपका रो कौन सा है 2, लेकिन कॉलम कौन सा है 0। तो इस तरीके से वैल्यू चलती है आपकी। ये पे ए आ जाएगा, यहाँ पे रो कौन सा है 2, कॉलम कौन सा है मेरा 1, तो 2 1 हो जाएगा। ये सिंटेक्स में आप ये लिख मैट्रिक्स बना के आना पड़ेगा आपको। अगर आप मैट्रिक्स बना के आएंगे तो फुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो कभी कभी एग्जामिनर मार्क्स नहीं देते हैं। बट द वे इज यू हैव टू, अगर आप थ्योरी कम लिख रहे हैं, थ्योरी कम लिख रहे हैं, और आपने एग्जाम्पल प्रॉपर दिया है, तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। सो ये कॉलम है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये कौन सा कॉलम है C0, और ये C1 है, और ये C2 है। आपको इसमें लिखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, C1 है, टेक्स्ट लिखना ज़्यादा बेटर है ड्राइंग से क्योंकि थोड़ा अच्छा लिखा जाता है ना। C2, ठीक है ना। ये C1 C2, ये हम रिमूव कर देते हैं इरेजर से, थोड़ा अलग तरीके का। तो ठीक है ना, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट हो गया। तो इसको बोलते हैं आप 2 डायमेंशनल एरे। क्या है ये आपका 2 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे लिख देते हैं 2 डायमेंशनल एरे। तो ये आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो आपको डेफिनेशन लगती है एरे ऑफ एरे, तो ये लिख देना है आपको डेफिनेशन में, इसको मल्टी डायमेंशनल एरे, जब आप एरे के अंदर एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक बार डायग्राम को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं और एग्जांपल बताते हैं आपको कैसे आप मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 डायमेंशनल एरे। ओके, सिमिलरली यू कैन क्रिएट द 3 डायमेंशनल एरे। अभी 3 डायमेंशनल एरे पे आ जाते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं भाई पेंट को। अभी हम 3 डायमेंशन, मैं आपको बता देती हूँ बस सिंटेक्स यहीं पे, फिर डायरेक्टली हम एग्जांपल पे जाएंगे। 3 डायमेंशनल एरे,
कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल लिखना है। यहाँ पे एक डेटा टाइप ले दिया है, ए ले गया है, यहाँ पे आपका 3 डायमेंशनल में मैंने लिखा ये कुछ भी, यहाँ पे मतलब ये आपके रो कॉलम वाइज रहते हैं, आपको इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि अब अभी इनिशियलाइजेशन देख लीजिए 2D का, आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं। यहीं पे सिंटेक्स ये आपके नोट्स के लिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है, आपको नोट्स अगर बनाने नहीं तो डायरेक्टली मैं एग्जांपल मूव कर जाऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे मैंने 3 है, पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो पहले आप क्या लिखते हैं, रो आता है, फिर आपका क्या कॉलम। तो यहाँ पे आप वैल्यू को किस तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने लिखा 1 3 0 सपोज ये लिख लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरे वाले को इनिशियलाइज कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया है, फिर मैंने 3, यहाँ पे मैंने 4, तो ये आपकी वैल्यू होगी। इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज करते हैं, दूसरा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंट वेट, मतलब आप अगर आपको ये कॉलम नहीं देना है तो कॉलम हटा के लिख सकते हैं, फिर दोनों वैल्यू को मतलब किसी भी तरीके से। एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने मतलब कुछ ऐसे लिखा है, सपोज यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ओके, तो आप इसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। और मैंने यही सिंपल चीज़ लिख दी यहाँ पे, ठीक है ना, इसको। और इसके अंदर यहाँ पे ठीक है, एक तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉलम और रो डिफाइन कर दिया है, और डिफाइन करने के बाद में आप इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सपोज मैंने ये जो वैल्यू लिया है वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है 1, और मैंने दूसरा क्या लिखा है 5 लिखा है, और मैंने फिर क्या लिखा है 9 लिखा है। तो दिस इज द वे यू कैन इनिशियलाइज योर एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, एक और यहाँ पे लगा देंगे, एक कोमा लगाएंगे यहाँ पे। चलो दूसरी लाइन में बता देते हैं आपको। ये 3 वाला है आपका, यहाँ पे लिख के बता देते हैं। मैंने यहाँ पे 4 दे दिया है, कोमा जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, बस सिंपल, बस ये डिक्लेयर करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे रो कॉलम में नीचे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन आप हटाएंगे, कोमा लगाएंगे, फिर और लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ये तरीका होता है, ये हटा देंगे यहाँ से, सेमीकोलन हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। इसके अंदर में जाने के बाद में एक और वेरिएबल यहाँ पे कॉलम में वैल्यू पास कर देंगे। मैंने अभी के लिए ये कुछ भी पास कर दिया, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आप एक और कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे। दिस इज द वे टू डिक्लेयर द 3 डायमेंशनल एरे, ओके। सो लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल। Two-dimensional array to store and print the value. Basic example we are going to discuss for the two-dimensional array. Let's move into the Turbo C++ and write the example. ओके, सेम चीज आपको लिखना है, हैश इंक्लूड std.h हैश इंक्लूड conio.h, ये मैंडेटरी होता है, तो आपको लिखना है। उसके बाद में मतलब देखो, आप जो प्रिंट कराने वाले हैं, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रही हूँ। सपोज मुझे क्या लिखना है, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ 2 cities ऑफ ए वीक एंड डिस्प्ले कराना है उसको। मैं ये एग्जांपल इसलिए कवर कर रही हूँ बिकॉज आपके साथ साथ में तैयारी भी हो जाएगी, जो आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अभी आपके पास चॉइस रहता है, क्या चॉइस रहता है कि आप डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि इंटीजर 8 2 3 इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर एक वेरिएबल आप पहले डिफाइन कर लीजिए और फिर उस वेरिएबल को आप यूज कर लीजिए। सो द बेस्ट वे टू बी यूज इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, फिर उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में आप यूज कर लीजिए।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, सिंपल वे से चाहते, तो सिंपल वे से भी कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू द बोथ द वे, बट डेफिनेटली इफ यू आर राइटिंग ए प्रोग्राम लिटिल बिट हायर, बिकॉज अभी आपने हाफ सी लैंग्वेज सीख लिया है, तो अभी आपको चीजें डिस्प्ले करना आ गया होगा, तो आपको ये चीजें का अच्छे से नॉलेज हो गया है, तो वो चीजें आप मतलब अप्लाई करते रहेंगे तो आपको रिमेम्बर रहेगा. तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है कॉन्स्ट, बिकॉज मुझे फिक्स रो एंड कॉलम मेरा फिक्स रहता है. मुझे क्या करना है, प्रिंट टेम्परेचर ऑफ 2 सिटी ऑफ वीक. दो मतलब जो वीक में 2 सिटी का मुझे टेम्परेचर जो है वो स्टोर कराना है और डिस्प्ले कराना है, मुझे ये कोड लिखना है. तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा सिटी. आप कैपिटल में भी ले सकते हैं सारा, और मैंने 2 सिटी का करना है, तो मैंने कितना सिटी लिया, 2. कॉन्स्ट ले लिया है, मतलब चेंज नहीं होगा ये वेरिएबल. और ग्लोबल ले लिया है मैंने, ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया कि पूरे प्रोग्राम में आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. वीक में दिन कितने होते हैं, 7, तो मैंने यहाँ पे 7 ले लिया है. और मैं अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं मेन मेथड से. अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मैट्रिक्स में आप कॉलम में 2, रो में 7 या 2 कॉलम, मतलब इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपने टेम्परेचर लेना है, तो मैंने टेम्परेचर, टेम्प नहीं पूरा लिख देता. टेम्प को आप थर्ड वेरिएबल मत समझ लेना, क्योंकि ये हम रट लेते हैं कि टेम्प मतलब थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो उस केस में ऐसा हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, सिटी, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, वीक. लेकिन अगर आप ऐसा लिखना नहीं चाहते, इस प्रोफेशनल वे में नहीं चाहते हैं, तो ऊपर वाले 2 लाइन को आप कमेंट कर दीजिए, वो यूज करने की जरूरत नहीं है. सिटी की जगह 2 आ जाएगा, वीक की जगह 7 आ जाएगा. लेकिन इफ यू आर राइटिंग ए प्रोग्राम इन स्पेसिफिक वे, तो दिस इज द बेस्ट वे टू बी डिक्लेयर. तो सामने वाले को लगता है कि हाँ थोड़ा प्रोफेशनल है, और आपका नॉलेज स्किल थोड़ा बढ़ जाता है. तो द वे यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, और आपको लिखने का तो इस तरीका है आपका, वो बना रहता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू एंड यू आर राइटिंग ए कोड, व्हेन यू आर डूइंग द जॉब. सो आपको हैबिट जो है वो सारे चीजों का इस तरीके से बन जाता है जो प्रोफेशनल वे में यूज होता है. तो आई विल सजेस्ट कि जो चीजें आपने सीख ली है तो वो अपने प्रोग्राम में आप उसको अप्लाई करें. मैंने कॉन्स्ट के बारे में, डेटा टाइप के बारे में आपको पहले बताया है, तो ये न्यू नहीं है आपके लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यूज है इसका. तो ठीक है. सो अभी मुझे क्रिएट करना है लूप, मुझे 2D एरे प्रिंट कराना है, तो हम नेस्टेड लूप का यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो मैंने एक वेरिएबल, ये वेरिएबल आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने सिर्फ यहीं पर डिफाइन कर लिया, इंटीजर आई लेस देन सिटी. क्या है, ये आपको यूजर से इनपुट करानी है, तो मैंने जो भी लेना है मैंने वो यहाँ पे सिटी रख दिया है, और यहाँ पे मैंने प्लस प्लस आई यूज कर लिया है. और अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लूप में जाते हैं. तो मेरा कॉलम के लिए हो गया है. अभी हम उसके बाद जो अपने रो के लिए हो गया, अभी हम दूसरा लूप लगाएंगे यहाँ पे. सो मैंने यहाँ पे एक और लूप लगाया है, फॉर लूप, और मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे जे. जे इज इक्वल्स टू मेरा 0 हो गया है, और यहाँ पे मेरा जे लेस देन अभी किस में आएगा, वीक में आएगा, ठीक है ना. और अभी मुझे वीक लेने के बाद में यहाँ पे इसको प्लस प्लस वीक कर देना है, बिकॉज हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो नॉट वीक, सॉरी, जे वेरिएबल लिया ना अपने स्मॉल में जे. तो ये आपका यहाँ पे लूप हो गया. तो अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिटी प्रिंट करानी है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करा है. और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से प्रिंट हो गया है, तो सिटी के साथ साथ उसको डिस्प्ले भी वेरिएबल में लिख लीजिए सिटी, और कॉमा लगा के मैंने कहा कि मुझे डे प्रिंट कराना है. थोड़ा सा स्पेस मैंने इसलिए दिया कि थोड़ा अच्छा लगेगा जब प्रिंट होगा, परसेंटेज डी. तो इन दोनों वेरिएबल को आप कैसे लिखने वाले हैं, अभी मैंने डबल कोट्स लगाया, कॉमा, ये भी प्रिंट कराने वाले हैं i+1, जिस तरीके से हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, j+1. तो सिटी मतलब जो भी सिटी में वेरिएबल दिया सपोज 1, तो सिटी 1 डे 1 इज टू जो भी आप वहाँ पे एंटर करने वाले वो वैल्यू आ जाएगा. स्कैन एफ आप यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट इनपुट कराने के लिए. आपको पता है आपका वैल्यू इंटीजर टाइप का है, तो आप एम्परसेंट, और आपका एरे का नेम क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर. तो वो जो एरे का नेम है आप वो यहाँ पे लिखने वाले हैं. टेम्परेचर आपका एरे का नेम हो गया है, और जो यहाँ पे आई और जे जो भी वेरिएबल आपने लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा. सेमीकोलन आप लिख दीजिए, यहाँ पे जाइए, क्लोज कर लीजिए, और ये आपका मैट्रिक्स बन के रेडी हो गया. लेकिन ये इनपुट हो गया, डिस्प्ले नहीं हुआ. तो यहाँ पे स्कैनएफ लिखा है, तो आपका वो मतलब सिंपल भी प्रोग्राम आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बट मैंने एक प्रोग्राम वे में से क्रिएट कर दिया आपको समझाने के लिए. एंड आई होप कि वो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है. अभी मुझे थोड़ा अच्छे वे में डिस्प्ले कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. एक और इनपुट लाइन से पहले हम यहाँ पे बैकस्लैशन का यूज करते हैं, और मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है डिस्प्लेइंग. आप डिस्प्ले करा रहे हैं ना, डिस्प्लेइंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है.
डिस्प्लेइंग वैल्यूज, और जो भी प्रोग्राम है आपका वो भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज की जगह हम क्या लिखेंगे वहां पे, डिस्प्लेइंग टेम्परेचर ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ 2 cities। displaying of temperature of 2 cities of a week। ये मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और मतलब डिस्प्ले कराने का एक जस्ट तरीका और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी डिस्प्ले कराने हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिस्प्ले इन अ 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे आपका लूप आ जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपल वही लाइन आपको प्रिंट कर देनी है इधर, बस प्रिंट कराते वक्त स्कैनफ हटा के आपको प्रिंट कराना है। बाकी डिस्प्ले भी आपको मैट्रिक्स, जब इनपुट मैट्रिक्स में करा रहे हैं तो डिस्प्ले भी आप मैट्रिक्स में ही कराने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें। देखो अगर अब इस वाले प्रोग्राम में मैंने कर्ली ब्रेसेस का आप बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि देखो आप चाहे तो ना यूज करें, मतलब जो भी आप कंडीशन देते हैं, मतलब मैंने पहले बताया कि आपको यूज करना है, एक लाइन का प्रिंट करा रहे तो नहीं, लेकिन लूप डेफिनेटली इस केस में तो लगेगा बिकॉज आप लूप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लाइन में कोड नहीं लिख रहे हैं, कोड को आप इस तरह से लिख रहे हैं कि डिस्प्ले कराने का आपका तरीका सही, तो कंफ्यूजन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप कर्ली ब्रेसेस का प्रॉपर ध्यान रखें, ठीक है ना, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब एटलीस्ट ये वाली एरर तो कम हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज डी मुझे, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे आप वीक इस तरीके से लिख लीजिए, सॉरी डे आ जाएगा यहाँ पे। तो डे में भी इंटीजर टाइप का परसेंटेज दिया जाएगा, सॉरी। यहाँ पे आपके वेरिएबल का नेम आ जाएगा ये, सॉरी। कंट्रोल एस कंट्रोल F9। वो एक एरर बता रहे हैं कहाँ पे, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ आई, ओके। ये बोल रहे कि आपका मल्टीपल डिक्लेरेशन है आई का। बेटर है कि आप वेरिएबल उस तरीके से डिफाइन करें। सिटी 1 डे 1 मैंने का मेरा इतना 23 है, डे 2 का मेरा 45 है, एंड डे 6 का मेरा 67 है, डे 4 का मेरा 76। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आपने प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा दिया मैंने। सिटी 1 का इतना है, 1 वीक का, 1 वीक का, और सिटी 2 का मेरा इतना है, 2 सिटी का मुझे कराना है, ठीक है ना। तो मेरा ये यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो गया। तो मेरा यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड कराया है, डे सिटी 1 डे 2, आप डे 1 का आपका ऊपर दिखाई दे रहा है, वो डिस्प्ले का ब्लैक बैक स्लेशन आता तो नीचे आ जाता। अभी हम दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पे ना एक काम करते हैं, डिस्प्ले जब हम करवा रहे हैं ना तो यहाँ पे हम बैक स्लेशन दे देते हैं, तो वो मेरा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो डिस्प्ले मेरा अच्छे से हो जाएगा। कंट्रोल F9 फिर से करते हैं। मेरा सिटी 1 डे 2 12, फिर हमने ये लिख दिया, ये 4 5 6 और 7, देखो एक हफ्ते का आ गया है। ये मेरा सिटी 1 का हो गया, अब मेरा सिटी 2 का डिस्प्ले हो रहा है। एक हफ्ते का है प्रिंट कराना, ये सिटी 2 का डिस्प्ले हो गया मेरा यहाँ पे। अभी ये चीज़ें आपने इनपुट कराई थी और यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, तो ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से।
मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी आप प्रिंट कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं कैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना कैसे पड़ेगा और आपका मैट्रिक्स कैसे प्रिंट होगा, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। एग्जांपल आपका मतलब हम लोग एक नया एग्जांपल यूज करेंगे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, ये बहुत फेमस एग्जांपल है और आपका एग्जाम में भी जरूर पूछ जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको ये समझ में आया। ओके, सो वी विल बी मूविंग इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो उस नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसी में कवर कर लेती हूँ मैं एग्जांपल, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट करा के दिखाएंगे। ओके, सो आई हैव टू क्लिक हियर, न्यू फाइल पे जाएंगे, एक नया प्रोग्राम हम बनाते हैं सम ऑफ टू मैट्रिक्स का। टॉपिक यहीं पे फिनिश कर देंगे, कंप्लीट करा के आपके दो एग्जांपल और। बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, नया विंडो खुलने वाला है, पिछले वाले विंडो पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो सम ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम है, नोट पैड नहीं खोलते, यहीं पे मैं आपको कमेंट में लिख देती हूँ, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, ये प्रोग्राम हमें कमेंट है, कमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऑर्डर भी लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। ऑर्डर 2x2 मतलब 2 रो रहेंगी, 2 कॉलम रहेंगे आपको इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्लूड, यहाँ पे आपको इंक्लूड लिखा है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज stdio.h। यहाँ पे आप इंटीजर मेन लिख लीजिए या वर्ड मेन लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हमने रो कॉलम को जैसे सिटी वीक को ऊपर डिफाइन करता है, वैसे भी कर सकते हैं या फिर यहीं पे। ठीक है ना, अगर आपको डेसिमल टाइप का लेना है तो फ्लोट यूज करेंगे, इंटीजर लेना है तो इंटीजर यूज करेंगे। मैंने इंटीजर के लिए आपको एग्जांपल बता दिया है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको डेसिमल का लेके बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मेरा जो मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रखा है यहाँ पे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो मेरा जो मैट्रिक्स का नेम है यहाँ पे ए है, 2x2 की मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने एक तो ये डिफाइन करा है मेरा रो कॉलम के लिए, फिर मैंने एक और यहाँ पे यूज करा है, उसको लिए मैंने 2x2 का ही यहाँ पे ये चीज रख ली है। और मेरा जो मैट्रिक्स मैं इनपुट कराने वाली हूँ यहाँ पे, एक मैट्रिक्स मेरा ए है, दूसरा मैट्रिक्स मेरा बी है, और मैंने एक और यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, रिजल्ट। मतलब ये मैट्रिक्स मेरा दो इनपुट मैट्रिक्स करेंगे और मेरा जो सम है वो तीसरी मैट्रिक्स में आएगा, और वो भी मेरा सम किस में आएगा, 2x2 की मैट्रिक्स में आएगा। मैंने ये दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने प्रिंटफ का इस्तेमाल किया है। प्रिंटफ मेरा प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपको फर्स्ट मैट्रिक्स को एंटर कराना है, और यहाँ पे हमने इसका यूज किया है, यहाँ पे आप बैकस्लैश का यूज कर सकते हैं। द वे इज टू डिस्प्ले, अगेन मैं आपको यही बोलती हूँ कि प्रोग्राम को थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। तो मुझे मैट्रिक्स को इनपुट कराना है, पहली मैट्रिक्स को यूजर से इनपुट करा रहे हैं हम, यहाँ पे कोई वैल्यू प्रीडिफाइंड नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्मेट है, डेफिनेटली नेस्टेड लूप यूज होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे बार बार यूज ना करना पड़े, तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट और कर लेते हैं, जो कि मेरा रो के लिए और एक कॉलम के लिए रहेगा। एक वेरिएबल आई और जे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। यहाँ पे आप इसको डेफिनेटली आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन यहाँ पे आप यूज करेंगे, कितना है आपका लेंथ यहाँ पे आपने दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा लूप यूज करेंगे और कॉलम रो के लिए, और फिर कॉलम के लिए आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, तो ये आपका 0 से स्टार्ट होगा और ये भी कहाँ तक जाएगा, आपका 2 तक जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, प्लस प्लस जे या जे प्लस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना के तो हम बाद में ले, एक और के वेरिएबल भी लेते हैं, तो मेरा रिजल्ट के लिए यूज होगा। यहाँ पे कॉमा के लिख लिया हमने। ठीक है, रिजल्ट वाली मैट्रिक्स के लिए भी कॉलम लगेगा ना, नहीं जरूरत नहीं है तो हम जे के भी ले सकते हैं, जे के की जरूरत नहीं है, हम जे में भी कर सकते हैं, थर्ड मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी, 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है। साथ साथ एक्चुअली जावा के भी बैचेस चलते रहते हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, तो उसके बाद में हम ये वाला लूप हो गया है। अब इस मैट्रिक्स में हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखना कि जो मैट्रिक्स आप एंटर कर रहे हैं, प्रिंटफ मैंने इसका यूज करा है, प्रिंटफ में मैंने लिखा है, वो ये लाइन आपकी ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं, मैंने कहा एंटर ए मैट्रिक्स, मैंने कहा एंटर ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स किस तरीके से मैंने प्रिंट कर दिया, परसेंटेज डी। ठीक है ना, मेरा दोनों का आएगा तो परसेंटेज डी मैंने करा दिया।
तो मेरा जो डिस्प्ले कराने का तरीका है सिर्फ वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा, 0+1 इस तरीके से डिस्प्ले होगा एक्चुअली। जब +1 मैंने यहाँ पे किया, अभी मुझे इसको इनपुट कराना है, SCNF स्कैनएफ का यूज करेंगे, और फ्लोट नंबर लिए तो %f यूज हो जाएगा, M% डेफिनेटली लगेगा, और यहाँ पे I और J मतलब 0 0 रहेगा, तो यहाँ पे A00 वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, मतलब इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे, इसे क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स जो है वो इनपुट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को पहले प्रिंट कराना है, पहले प्रिंट कराना है और फिर मुझे उनका सम कराना है। तो दिस इज द वे, मतलब आप दोनों मैट्रिक्स को किस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे वही सेम चीज आपको लिखनी है जो आपने अभी तक लिखी है, वो इस पूरा लूप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी पहला मैट्रिक्स एंटर कराया है, तो अभी हम दूसरा मैट्रिक्स एंटर कराएंगे। बैकस्लैश का आप यूज कर लीजिए, यहाँ पे लिखे एंटर सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये सेकेंड मैट्रिक्स आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिख लिया है, यहाँ पे फिर से फॉर लूप लिख लीजिए, I0, I<2, I++ या ++I, जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे I++ और I++ और ++I से इफेक्ट कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। आप चाहे तो ++ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आपको पता है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता है, मीन्स अभी आप अननोन नहीं है उस चीज़ के लिए। मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट एफ इसको भी इस तरीके से स्कैन कराते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर बी मैट्रिक्स, %D कोमा, यहाँ पे भी सेम चीज़ I+1 और J+1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्कैनएफ का यूज करेंगे यहाँ पे आप, और %f यूज करेंगे क्योंकि वो फ्लॉट टाइप का आपने लिया है, एंटर बी मैट्रिक्स लिया है, तो आपने I और J यहाँ पे यूज कर लिया है। इसको आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। मेरे पास 2 मैट्रिक्स मैंने इनपुट करा लिए। अभी मुझे क्या कराना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम कराना है और प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अभी आप घबराइए नहीं, एक एक पार्ट पढ़ते जाइए, प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन समझ में आएगा आपको। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स मैंने कमेंट में लिख दिया कि ये जो 2 मैट्रिक्स, इसके बाद में जो होने वाला है कॉन्सेप्ट, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया है, I=0, टू टाइप आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, J=0, J++, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रिजल्ट, और वो क्या है आपका वेरिएबल रिजल्ट I, और यहाँ पे सॉरी I और J = किन की मैट्रिक्स का सम, A और B मैट्रिक्स का सम। ओके, सिंपल, बस फॉर्मूला लिख देना, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आप नॉर्मल कोड में करते हैं। क्लोज कर दो उसको भाई यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारी बारी है डिस्प्ले कराने की। यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख भी दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्प्ले आफ्टर सम, ये तो पता ही होगा आपको कैसे सम होता है। जो जो 0 कॉलम है रो, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले डिस्प्ले कराते हैं इसको। प्रिंट एफ में मैंने बैकस्लैश यूज करा है, सम ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम प्रिंट कराने वाले हैं। ओके, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। मैंने फिर से लूप लिया है, I=0, I<2, I++, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स रहेगी ना आपकी, तो उसके लिए मैंने ये सेम ही प्रिंट करा रही हूँ, सेम फॉर्मेट में, ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। यहाँ पे J=0 और J<2 ++J आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। ओके, मैंने डेसिमल लिया है वैल्यू, तो मतलब आपकी मर्जी आप किस तरह से प्रिंट करानी है। तो मैट्रिक्स है तो 2 तक दशमलव की जरूरत नहीं है, आप इसका ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले % यूज़ करेंगे, 0.1 यूज़ करेंगे, और आप फ्लोट के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, F, डबल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, LF, \T, तो एक वैल्यू प्रिंट करेगा, थोड़ा सा वो गैप चला जाएगा। तो मैंने इसलिए कि वो फॉर्मेट आपको मैट्रिक्स की तरह से दिखाई दिए,
इसलिए मैंने ये लिया है। तो बस कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा तरीका है चीज़ों को डिस्प्ले करने का। वो आप सारी जो चीज़ें आपने सीखी है वो सब आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। मैंने लिखा है कि इफ़, ये कंडीशन अगर आपको देने हैं दे दीजिए, नहीं तो सिंपली प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। इफ़ जे इज इक्वल्स टू मेरा 1 है, मतलब जब उसको वैल्यू मिल जाएगा तो पहली लाइन मेरी प्रिंट हो जाएगी, और पहली लाइन में मेरे जे की वैल्यू कितनी रहेगी 1। तो पहली लाइन के बाद वो आपका बैक स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर आपको एक कंडीशन नहीं देनी है ना तो आप एक काम कर सकते हैं, पहली लाइन प्रिंट कराने के बाद नीचे इस पहले वाले लूप के बाद, जो पहले वाला लूप आप दे रहे हैं ये फॉर लूप, इसके बाद आप प्रिंट एफ में बैक स्लैश लगा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। या तो आप ये वाला कंडीशन लगा के इस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है ना। ये मेरे दूसरे वाले लूप का हो गया। यहाँ पे हम पहले गेट से पहले पूरा कर लेते कोड को। यहाँ पे सी एल आर एस आर मेरे फंक्शन में जो था वो इंट था, तो मैंने यहाँ पे, इसलिए मुझे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, रिटर्न RETURN रिटर्न 0, ठीक है ना, ये मुझे लिखना पड़ेगा, और ये मेरा मेन मेथड का। तो यदि आपको ये कंडीशन नहीं देना है ना तो आप मत दीजिए, तो आप क्या करें, इस लूप को ही बंद कर दीजिए प्रिंट एफ के बाद, और प्रिंट बैक स्लैश इस लूप के बाद यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो चॉइस आपकी है। तो मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया प्रोग्राम को, कंट्रोल F9 इसको रन कराया मैंने। अभी मुझे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, मैंने बैक स्लैश नहीं दिया है तो 1 by 1 उसके सामने आ गया है। चलो ठीक है, कोई नहीं है। अभी हम इस तरीके से एंटर करते हैं, तो ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स एंटर हो रहा है, वो बैक स्लैश देना है मुझे, ठीक है ना। तो सम ऑफ मैट्रिक्स मेरा इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अभी हम बाहर आ जाते हैं थोड़ा। अभी बाहर आने के बाद ना हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सही तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बैक स्लैश लगाते हैं, बैक स्लैश, ओके। हाँ, एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, तो 1 by 1 मैट्रिक्स मैंने 1 एंटर कर दिया है, 2 एंटर करा है, ये थर्ड मेरी पहली मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। नहीं, पहले 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना, तो मेरे 2 रो है 2 कॉलम है, ओके। सो मेरा 1 यहाँ पे एंटर कर दिया। 0 आप I+1 हटा देंगे तो वो 0 1 पे प्रिंट करेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है, आप यहाँ पे सम के बाद में ना एक बैक स्लैश दे दीजिए, यहीं पे दे दीजिए बैक स्लैश, तो वो उसके नीचे नहीं आएगा मैट्रिक्स फॉर्मेट में। मैंने एक्चुअली कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया, इसलिए मैंने वो इफ कंडीशन हटा दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कर्ली ब्रेसेस हटा दीजिए तो आपको करना पड़ेगा। अभी कंट्रोल F9, अभी हम रन कराते हैं, ओके। 1 सिंपली प्रिंट कराते हैं, ये मेरा पहला मैट्रिक्स हो गया है। अभी अभी हम दूसरा प्रिंट कराते हैं कि 0 1। हम एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं करते हैं, अभी वापस जाने के बाद मैं 0 1 0 कर दूंगी, ओके। वो आपका वहाँ पे बस मुझे ये मेरा मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, आपका सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। आपने जो कोड लिखा है वो सही है, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली, बस मैं अपना प्रीफिक्स की जगह पोस्ट भी कर देती हूँ। वो क्योंकि प्रिंट मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था कि आप, लेकिन मैंने कॉलम आपको 0 से कॉलम स्टार्ट करके एक डायग्राम बनाया है, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो यहाँ पे हम वही करते हैं, ओके।
ये आपका सम हो गया परंतु। तो देखो कितने अच्छे तरीके से हमने मैट्रिक्स को प्रिंट कराया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आप इसको यहाँ से हटा दो अगर आप चाहते हो। Just a way to display. So different way to display that I'm explaining. ओके, आपके मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में आ गया। पहले 0 पहले वाला कॉलम आ गया है, अभी मैंने इसका 1 रख दिया है हम, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, दो दो रो 2 कॉलम। ओके, अभी सेम यहाँ पे ये आ गया। और अब सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसको दूसरे तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट कराना है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो प्रिंट कर रहे हो ना, आप इसको एरे में ले सकते हो। मतलब उसके लिए आपको डबल स्लैश कॉमा ये सब यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये आपका छोटा सा एक प्रोग्राम हो गया, एडिशन ऑफ 2 नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे मेरा फिनिश हो जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे एंड फंक्शन। तो हम फंक्शन के अंदर एरे को यूज़ करके आपको बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स भी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए तो वो भी पूछ सकते हैं। यू कैन राइट इन अ कमेंट। And if you like the way I'm teaching you and you are able to understand my topic and you feel yeah, this is adding some beneficial for you, so please subscribe my channel, support me so I can make more videos. Thank you so much for watching. We will meet in the next session.